السلام علیکم. یہ ہے مالا کی ایپیسوڈ نمبر 8. تو چلیے شروع کرتے ہیں. مبین منزل کا کچن بھی باقی گھر کی طرح سرسبز پتوں سے آراستہ تھا. سنک کی کھڑکی کی سلاخوں کے ساتھ منی پلانٹ کی بیلیں اوپر چڑھتی دکھائی دے رہی تھیں. کاؤنٹر کے ہر کونے میں سبز بوتلوں میں بھی منی پلانٹ سجے تھے. وہ وسطی گول میز پہ اداس سی بیٹھی اپنے ساتھ براجمان حور جہاں بیگم کو دیکھ رہی تھی. وہ سر جھکائے لہسن چھیل رہی تھیں. وہ دیسی لہسن منگوایا کرتی تھیں جو چھیلے جانے میں وقت لیتا تھا. اس لیے ماں جب فارغ ہوتی لہسن چھیلنے لگتی. لان کے سوٹ پہ سفید چکن کا دوپٹہ انہوں نے سر پہ لے کر کانوں کے پیچھے اڑس رکھا تھا. وہ نرمی سے ان کی کنپٹیوں سے نکلتے بال پیچھے کرنے لگی. وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی اور وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی. جب ماں بیمار ہوتی ہے تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اپنی ساری دولت، ڈگری اور کامیابیوں کے باوجود وہ کچھ بھی نہیں ہے. جو ہے وہ اللہ ہے اور بس اللہ ہی ہے. دفتن ڈرٹی کچن کا دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا اور کسی نے کھنکارتے ہوئے اس کی توجہ چاہی. مالا نے بجھا ہوا چہرہ اٹھا کے دیکھا تو سامنے کیف کھڑا تھا. جینز پہ بھوری ڈریس شرٹ کی آستینیں پیچھے موڑے، بال گیلے، ماتھے پر بکھرے. وہ ہر صبح کی طرح حشاش بشاش اور مسکراتا ہوا نظر آتا تھا. باس، میں کافی بنا رہا ہوں، آپ کو چاہیے؟ مالا نے نفی میں گردن ہلا دی. ماں نے برہمی سے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا. یہ باس کیا ہوتا ہے؟ جیسے سلیم کہتا ہے کشمالہ بی بی ویسے کہا کرو. ساتھ ہی بڑبڑائیں، کسی انگریز کی اولاد نہ ہو تو. جی بڑی بیوی، میں چلتا ہوں، کیف سنبھل کے بولا. اسے ماں کی ڈانٹ سے ڈر لگتا تھا، یہ واضح تھا. واپس آؤ میاں. ماں نے اسے گودتے ہوئے 2 انگلیوں سے آنے کا اشارہ کیا. جی. کیف متذبذب سا آگے آیا اور ہاتھ باندھے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا. منی پلانٹ والی کھڑکی اب کیف کی پشت پہ تھی. مالا نے دلچسپی سے ہتھیلی پر پٹھوڑی جمائے اسے دیکھا. ماں کی ڈانٹ بڑی دلچسپ ہوتی تھی، بالخصوص تب جب وہ کسی اور کو پڑے. نہ، مجھے ایک بات بتاؤ، تمہیں تمہارے اماں ابا نے کوئی ادب سکھائے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے کوشش تو کی تھی لیکن کامیاب نہیں ہوئے. مالا نے مسکراتے ہوئے اسے گھورا. ماں کو اس کے انداز پہ مزید تپ چڑھ گئی. رات سونے کے لیے ہوتی ہے میاں، اور دن کام کرنے کے لیے. جو تم رات بھر لان میں ٹہلتے ہو، فون پہ لگے ہوتے ہو نا، ساری آوازیں آتی ہیں مجھے. میں فون پہ؟ کیف کے چہرے پہ ناسمجھی کا تاثر ابھرا، جیسے اسے ماں کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو. مالا کو لگا شاید ماں مکس اپ کر رہی تھی. ماں سوتے وقت اے سی نہیں چلاتی تھی. اس کی ہوا سے ان کے گھٹنوں میں درد ہوتا تھا. وہ کھڑکی کا ایک پٹ کھولے رکھتی تھیں، یوں لان کی آوازیں صاف اندر آتی تھیں. سوری بڑی بیوی، میں دھیان کروں گا. کیف نے تابیداری سے بات سنبھال لی. ماں بڑبڑا کے بخت بی کو آواز دینے لگی. کیف الٹے قدموں ڈرٹی کچن کی طرف بڑھ گیا. دروازہ بند نہیں کیا، بس خاموشی سے اپنی کافی بنانے لگا. ماں، وہ نرمی سے کہتی ماں کے قریب ہوئی. میں نے اس کو چوکیداری کی ڈیوٹی بھی دی ہے. اب پوری رات کرسی پہ فارغ تو نہیں بیٹھ سکتا بیچارہ، کالز کر لیتا ہوگا. خیر ہے. ماں نے ناپسندیدگی سے ڈرٹی کچن کی طرف دیکھا جہاں کیف ان کی طرف پشت کیے کافی بنا رہا تھا. لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے ساری رات. توبہ، استغفر اللہ. مالا کو ہنسی آ گئی. آپ کو کیسے پتا؟ زارا کی رٹ لگا رکھی تھی کل اس نے. کوئی دوست ہوگی اس کی، جانے دیں. ماں نے شرمگین نگاہوں سے اسے گھورا. بی بی، مرد اور عورت کبھی دوست نہیں ہوتے. آج کل سب چلتا ہے ماں. ان کو مزید تپانے کے لیے مسکراہٹ دبا کے بولی. کبھی اپنی ماں کا کوئی دوست گھر آتے دیکھا؟
बर्दाश्त होता तुम लोगों से? मर्द और औरत अज़ल से अब तक दोस्त नहीं बन सकते। मर्द मर्द होता है, औरत औरत। वो लहसुन का छिलका उतारते हुए कह रही थी। अल्लाह ने आदम और हवा को जब ज़मीन पे उतारा तो मुख्तलिफ जगहों पे उतारा। उन दोनों को एक दूसरे को तलाश करने में कई बरस लगे थे। अल्लाह ने हर इंसान का जोड़ा इस दुनिया में उतारा है। किसी को मिल जाता है और किसी को नहीं, मगर वो होता ज़रूर है। और हर इंसान सारी ज़िंदगी इसी जोड़े को तलाश करता रहता है। दोस्ती के नाम पर भी मर्द औरत दूसरे शख्स में उसी जोड़े को ढूंढ रहे होते हैं। वो बख्तों को आवाज़ देते हुए घुटनों पे हाथ रखे उठ गईं और फ्रिज की तरफ बढ़ीं। काफ़ी मेकर चलाते हुए कैफ ने हल्की सी गर्दन मोड़ के क्लीन किचन की गोल मेज़ पर बैठी लड़की को देखा। वो अपनी माँ की बात पे दिल खोल कर हंसी थी। बालों की ऊंची पोनी टेल बनाए उसकी सब्ज आंखों वाला चेहरा दुला दलाया और शफाफ लग रहा था। उसने ऐसे मेहरबान चेहरे वाली लड़की कभी देखी थी क्या? शायद नहीं। बख्तों, ये बचे हुए सालन निकालो और डब्बों में डालकर हमसायों को के मुलाजमों को दे आओ। माँ, रोज़ इतना खाना ना बनाया करें, अगर आसपास बांटना ही होता है। आज एक सालन बना लें और साथ उन पुराने सालन को चला लें। माँ ने घूर के उसे देखा। अब मैं घर के मुलाजमों को बासी सालन दूंगी और अपने बच्चों को नया सालन? बीबी, ऐसी तफरीक तुम्हारी माँ ने कभी नहीं की। उफ माँ, मैं खा लूँगी पुराना सालन। आप बख्त बी और सलीम के लिए नया बना लें, जल के बोली। माँ ने उन लोगों को मुलाजिम नहीं रखा हुआ था, उन्होंने माँ को मालिक रखा हुआ था। खाना खिलाना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। खिलाने से किसी का रिज़्क कम नहीं होता। माँ फ्रिज के दरवाजे बंद करके उस तरफ मुड़ी तो देखा डर्टी किचन में कैफ अपनी ताज़ा बनाई कॉफ़ी का घूंट भर रहा था। साथ ही उसके चेहरे पे नापसंदीदगी दर आई। मुँह क्यों बना रहे हो? कैफ ने चौंक के उन्हें देखा। वो उसे ही घूर रही थी। उसने जल्दी से कप नीचे किया। इतनी अच्छी नहीं बनी इसलिए। क्यों मियाँ? बख्त भी जो चूल्हे के साथ खड़ी थी चमक के बोली। जब मैंने चाय बना के दी थी तो कहते थे मैं चाय नहीं पीता। अब ये विलायती कॉफ़ी हलक से नीचे नहीं उतर रही। कैफ ने मग काउंटर पर रखा और उनके सामने आया। अब कि वो बोला तो अंदाज जला कटा था। मैंने कहा था बख्त भी कि मैं ऐसी चाय नहीं पीता जो आप बनाती, काले पानी जैसी। मैं खालिस दूध की कड़क चाय पीता हूँ जो काफ़ी देर तक चूल्हे पे कड़ती रहे। ओके, नखरे तो देखो। बख्त भी बुरा मान गई। और ये काफ़ी मेकर मैंने कशमाला बीबी के लिए निकाला है, क्योंकि वो भी आपके हाथ की कॉफ़ी नहीं पी सकती। चबा के बख्त भी को इतला दी। माला को लगा कि अब कैफ को माँ से डांट पड़ने वाली है, लेकिन खिलाफ तौका माँ उसे चंद लम्हे देखती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस अपनी कुर्सी तक आई। तो खुद अपने लिए बना लिया करो कड़क चाय। माँ का अंदाज आम सा था। मुझे बनानी नहीं आती, उसने कंधे अचका दिए। वाह, कुछ था जो कैफ को नहीं करना आता था। पहले कौन बना के देता था? कैफ ने जवाब नहीं दिया और डर्टी किचन की तरफ बढ़ गया। वापस आओ और कहवे का पानी रखो। मैं तुम्हें सिखाती हूँ कड़क चाय बनाना ताकि तुम्हारे नखरे ख़त्म हों। माँ ने घूर के उसे वापस आने का इशारा किया। कैफ हल्का सा मुस्कुरा दिया। माँ की डांट के पीछे भी उनकी फिक्र थी। चाहे मुलाजिम भी हो, लेकिन उसे उसकी पसंद का खाना पीना मिलना चाहिए। वो चुपचाप वापस आया और उनकी हिदायत के मुताबिक कहवा रखने लगा। माला को उससे हमदर्दी हुई। माँ के साथ जो किचन में काम करता है उसको डांट भी साथ साथ पड़ती है। अलबत्ता कुछ था जो उसके जहन में चुभा था, किसी कांटे की तरह जो फसलों में चलते हुए पांचों के साथ चिपक जाते हैं। उसके घर में कौन था जो उसे इतनी मेहनत से कड़क चाय बना के दिया करता था? कैफ ने इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया था? कहते हैं जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा नहीं हुआ। ठीक कहते हैं या गलत? मगर कहते ज़रूर हैं। लाहौर कशमाला के लिए हमेशा एक फरार था। जब वो अपनी वर्क लाइफ से तंग आ जाती
तो अपने घर वापस आ जाती। कुछ दिन माँ के साथ रहती तो जहन फ्रेश हो जाता, मगर लाहौर में मुस्तकिल रहना उसके लिए कठिन साबित होने वाला था। यहाँ की फ़ज़ा आलूदा थी और शोर ज़्यादा था। इस्लामाबाद एक ही रंग में रंगा था। पिंडी के हदूद से जैसे ही इस्लामाबाद में दाखिल हो तो एक पोश और साफ सुथरा सा शहर नजर आता था। लाहौर ऐसा नहीं था। उस शहर में बहुत से रंग एक साथ बसते थे। लोगों के लहजे मुख्तलिफ थे। सुबह देर से होती थी और रात उससे भी देर से। यहाँ सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट खाना और शॉपिंग मॉल्स थे। दोपहर में वो किसी काम से बैंक जा रही थी तो कार की खिड़की से बाहर गुजरते मंजर को देखकर उसे हैरत हुई। लाहौर में बहुत से रेस्टोरेंट चाय के नाम से खुल गए थे और ये सब नए रेस्टोरेंट थे। तुम्हें कड़क चाय पसंद है ना? देखो तुम्हारे लिए कितने कैफे हैं यहाँ, उसने ड्राइविंग करते कैफ को बताया। कुछ साल पहले तक लाहौर ऐसा नहीं था। कैफ विंड स्क्रीन के पार सड़क पे तवज्जो किए तबसरा करने लगा। यहाँ कॉफ़ी पीना फैशन समझा जाता था। चाय एक बैकवर्ड चीज़ थी, लेकिन जब से इंडियन पायलट अभिनंदन ने पाकिस्तानी चाय को फैंटास्टिक कहा है, लाहौर में चाय के नाम पे दर्जनों कैफे खुल गए हैं। तुम्हें कैसे मालूम? तुम तो इतने साल से इस्लामाबाद में रह रहे हो। कैफ ने शान अचकाई। मुझे मालूम होता है। वो ड्राइव करते हुए बैक व्यू मिरर ऊपर कर देता था और उसे कैफ की ये आदत बहुत पसंद थी। इतने दिन से वो डरी नहीं थी, ना उसे उस अनजान ताक़तकार से कोई खौफ महसूस हुआ था, क्योंकि वो जब भी बाहर निकलती कैफ साथ होता। ये एहसास तहफ़्फ़ुज़ उसे पहले किसी गार्ड के साथ महसूस नहीं हुआ था। वैसे मैं ध्यान करूँगा कि रात को मेरे काम की वजह से बड़ी बीवी डिस्टर्ब ना हो। वो तो अक्फ से बोला। हाँ, तुमने बताया था तुम अपना बिजनेस प्लान बना रहे हो। कहाँ पहुँचा हो? वो खिड़की से बाहर दौड़ते दरख्तों को देख के बोली। वो नहर के साथ सफर कर रहे थे और यहाँ दरख्त पहले से ज्यादा हो गए थे। सब्जा देख के अंदर तक ठंडक उतर गई थी। अभी तो शुरू किया है। 1.5 माह है मेरे पास। 1.5 माह क्यों? उसे हैरत हुई। वो दरअसल वो संभला और मोड़ काटा। अपने लिए डेडलाइन रखी है। ओह अच्छा, कश्माला ने सर हिला दिया। 1.5 माह काफी लंबा अरसा है। 2 हफ्ते भी काफी होते हैं। खैर, तुम कर लोगे। उसकी बात पे वो मुस्कुरा दिया। थैंक यू। मुझे किसी ने कहा था कि मैं नहीं कर सकूंगा। कश्माला ने अफसोस से सर झटका। लोग नौजवान एंटरप्रेन्योर्स से इतनी बेरहम बातें कैसे कह देते हैं। खैर, एक मशवरा दूं? तुम्हें एक मेंटोर की ज़रूरत है। हर नौजवान एंटरप्रेन्योर को होती है। कोई बहुत सीनियर और कामयाब इंसान जिसको बिजनेस की समझ तुमसे ज़्यादा हो, जो तुम्हारा प्लान देख के उसकी खामियां दूर कर सके। कहते हुए माला ने सोचा, क्या उसे कैफ को अपनी मेंटोरशिप ऑफर करनी चाहिए? वो उसका प्लान देख के उसको इम्प्रूव करने में मदद कर सकती थी। लेकिन जी, मेंटोर है मेरे पास। अच्छा, कौन? उसने खिड़की से नजरें हटाई और दिलचस्पी से कैफ के कंधे की पुश्त को देखा। वो यहाँ से उसका चेहरा नहीं देख सकती थी, बस स्टीयरिंग पे रखे उसके हाथ नजर आते थे। आप नहीं जानते उसे, मतलब वो यहाँ का नहीं है। बरतानिया का एक कामयाब बिजनेसमैन है। मेरा फैमिली तलक है उससे। वो सोच सोच के कह रहा था। कश्माला के ने कंधे अचका दिए। ओके गुड, मगर तुम मेरी जॉब के साथ अपने प्लान पे काम कैसे करोगे? कर लूँगा। पूरी रात होती है मेरे पास। आपका ताकतकार भी तंग नहीं कर रहा। फिर ख्याल आने पे पूछा, आपने बड़ी बीबी का चेकअप नहीं करवाया? मईद ने अपॉइंटमेंट ली है एक न्यूरोलॉजिस्ट से मंगल के लिए। मंगल आने में 5 दिन हैं। वो जवाब देती, लेकिन कार का मोबाइल वाइब्रेट करने लगा। मोबाइल ड्राइविंग और फ्रंट सीट के दरमियान में रखा था। कैफ ने मोड़ काटते हुए मोबाइल उठाना चाहा। वो फिसल के नीचे गिरा। उसने चौंक के फोन गिरते नहीं देखा था, इसलिए वो अपनी साइड पे हाथ मारने लगा। हालांकि फोन स्लिप होकर पीछे कश्माला के कदमों में आ गिरा था। उसने झुक के मोबाइल उठाया। स्क्रीन सामने थी। एक ही नजर में कॉल करने वाली का नाम पढ़ सकती थी, ज़ारा कैफ। उसने मोबाइल कैफ की तरफ बढ़ाया तो कैफ ने तेजी से उसे तकरीबन खींचा और फिर जोर से बटन दबा के उसे बंद किया और दूसरी तरफ रख दिया। कार की स्पीड बढ़ गई। कैफ डिस्टर्ब हो गया था। वो जाहिर किए बिना खिड़की से बाहर देखने लगी, मगर जहन में बहुत सी जमा तफरीक चल रही थी। ज़ारा कैफ, ये कौन थी? कैफ की सीवी के मुताबिक वो गैर शादीशुदा था। शायद उसकी कोई दोस्त हो जिसका
लास्ट नेम भी कैफ हो। क्या ऐसा इत्तेफाक मुमकिन था? कशमाला को बैंक के सामने उतार के वो कार में बैठा रहा। जब उसे तसल्ली हो गई कि वो अंदर जा चुकी है तो उसने मोबाइल निकाला और ज़ारा की चैट खोली। फिर बेबसी बड़े गुस्से से मैसेज टाइप करने लगा, तुम आइंदा मुझे खुद से कॉल नहीं करोगी, जब कॉल करनी होगी मैं खुद करूँगा, समझ में आया? वो कुछ देर वहाँ बैठा सोचता रहा। उसकी मुड़ी पलकों वाली आंखें बैंक के दरवाजे पे जमी थी, जहन में अलग तूफान बरपा थे। फिर उसने वाइट हेयर्स को कॉल मिलाई और मोबाइल कान से लगा लिया। मैं ये जॉब मजीद नहीं कर सकता, मैं क्विट करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ एक लम्हे की खामोशी छा रही। फिर मालिक की सर्द आवाज़ गूंजी, क्यों? मेरे ज़ाती ज़िंदगी और ये जॉब मिक्सअप हो रहे हैं। तुम्हें क्या मजाक लगता है ये सब? मालिक एकदम गुस्से से दहाड़ा। तुम एक सुबह उठ के फैसला करोगे कि तुम ये नहीं करना चाहते और मैं तुम्हें चुपचाप वॉकआउट करने दूंगा? चिल्लाओ मत, मैं तुम्हारा मातहत नहीं हूँ, मैं जब चाहे इस जॉब को छोड़ सकता हूँ। वो दांत पीस के बोला। उसके कान सुर्ख हो रहे थे। तौक़ुफ़ के बाद मालिक बोला तो आवाज़ धीमी थी, असल वजह क्या है, क्यों छोड़ना चाहते हो ये जॉब? कैफ ने गहरी सांस ली। उसकी माँ बीमार है, मैं उसके साथ मज़ीद धोखा नहीं कर सकता। तुम उसकी माँ के लिए इतने हसास क्यों हो रहे हो? बस मैं उसकी फैमिली के साथ नहीं रह सकता, ये प्लान का हिस्सा नहीं था, अब यही प्लान का हिस्सा है। मेरी बात गौर से सुनो, तुम उस लड़की की जॉब करोगे जब तक तुम्हें वो नहीं मिलता जो हमें दरकार है। उसने मुझे नहीं बताया कि वो कैसे जानती है कि किसी आदमी के पास उसकी तस्वीर है। मैंने उस दिन से 2 दफ़ा पूछा है, वो नहीं बताती, मैं क्या करूं? फिर तुम उसका एतमाद हासिल करो, तुम्हें ये करना पड़ेगा, या मैं उसे सब सच बता दूं। मैं ऐसा कर सकता हूँ। उसका अंदाज न डर था, किसी भी खौफ से खाली। ठीक है, अभी जाओ और उसे सब बता दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उससे क्या होगा? क्या वो तुम्हारा शुक्रिया अदा करेगी? नहीं, वो तुम्हें खड़े खड़े घर से निकाल देगी और तुम खाली हाथ रह जाओगे। कैफ के तने असाब ढीले पड़ते गए। मैं झूठा और धोखेबाज नहीं था, मैं मजीद नहीं ये नहीं करना चाहता। तुम उस लड़की की ज़िंदगी में धोखे से दाखिल हुए हो, अब तुम इस चीज़ को फिक्स नहीं कर सकते। अब वापसी मुमकिन नहीं है, जल्द या बदेर उसे तुम्हारी हकीकत मालूम हो जाएगी। उसके बाद वो सिर्फ तुमसे नफरत करेगी। मालिक का अंदाज इस्तेहज़ा था। तुम्हें उस वक्त के आने से पहले अपना काम मुकम्मल करके वहाँ से निकलना है, सिंपल। मालिक के लिए ये जमा तफरीक बहुत आसान थी और उसके लिए ये फिक्रा बहुत भारी था। वो तुमसे नफरत करेगी। तुम मुझे किसी भी चीज़ के लिए मजबूर नहीं कर सकते, वो बेबसी भरे गुस्से से बोला। मैंने अपनी मर्जी से इस जॉब के लिए हामी भरी थी, मैं अपनी मर्जी से इस खेल को ख़त्म भी कर सकता हूँ। तुम्हारे पास ये चॉइस उस दिन तक थी जब हम तीनों उस होटल स्वीट में इकट्ठे हुए थे। उस दिन के बाद तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं रही। तुम इसको नहीं बताओगे, वरना मैं सच कह रहा हूँ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ और अपना काम मुकम्मल करो। कशमाला बैंक से बाहर आ रही थी, कहीं पर बैग लटकाए, सनग्लासेस माथे के ऊपर चढ़ाए, वो मोबाइल के बटन साथ साथ दबा रही थी। फिर चेहरा उठा के अपनी कार की तलाश में देखा। कैफ ने फोन रख दिया। कशमाला की निगाह उससे मिली तो वो मुस्कुरा दी और उसकी तरफ आने लगी। क्या वो उससे नफरत करने लगेगी? क्या उन दोनों पे ऐसा भी वक्त आना था? कार स्टार्ट करते हुए उसके जहन में एक ही फिक्र गूंज रहा था। मुबीन मंजिल के बलाई फ्लोर पे एक कमरे की खिड़की लॉन में खुलती थी। वो कमरा किसी जमाने में गेस्ट रूम होता था। बरसों पहले कशमाला ने वहां से बेड और सोफा निकलवा के उसे अपना पेंटिंग स्टूडियो बना लिया था। फिर वो इस्लामाबाद चली गई तो ये कमरा बंद ही रह गया। काम वाली सफाई कर देती थी, लेकिन जब से माँ ने सीढ़ियाँ चढ़ना तर्क किया था, ऊपर की सफाई बीबाज भी होती थी। उस रोज कशमाला जैसे ही अंदर दाखिल हुई, गर्द की बू फौरन उसे नथनों में घुसी। कमरा खाली खाली सा था। 2 दीवारों पे बुक शेल्फ बने थे जिसमें उसकी पसंद की किताबें और पेंट बॉक्सेस रखे थे। नीचे कैबिनेट्स बने थे। उसने एक कैबिनेट खोला तो बहुत सी यादें सामने आ गईं। मैरीज और मेंसन एंड न्यूटन के खाली पेंट बॉक्सेस, टर्पंटाइन का आधा भरा कंटेनर, साथ ही चंद खाली कंटेनर्स रखे थे जिन पे ऑयल पेंट के दागों की बहुत बहतात थी। उसमें से एक कंटेनर उसका पसंदीदा था। मालन ने जख्मी मुस्कुराहट के साथ उसे उठा के देखा। आर्टिस्ट्स को अपने कुछ डब्बों और कुछ ब्रशेस से मोहब्बत हो जाती है, बिलखुसूस ऐसा ब्रश जिस पे उसका हाथ बैठ जाए। इस डब्बे में उसका फेवरेट ब्रश रखा था। उसके ब्रिसल्स रफ और दागदार थे और अब तक वो एक्सपायर हो चुका था, लेकिन माँ ने उन्हें फेंकने की इजाज़त कभी नहीं दी। माला जैसे उन्हें छोड़ के गई थी
उसे वो वैसा ही मिलना चाहिए। शायद वो हमेशा से इसकी वापसी की मुंतजर थी। एक दीवार पे ऊंची सी खिड़की थी जो लॉन में खुलती थी। उसने ब्लाइंडर्स ऊपर किए और खिड़की का पट खोला। गर्द की एक तह उड़ के आंखों में आई। नीचे लॉन में गार्ड्स चेयर पे बैठा कैफ स्केच बुक पे तेज तेज पेंसिल चला रहा था। आहट पे उसने गर्दन उठा के कशमाला को देखा, फिर स्केच बुक रखकर उठ खड़ा हुआ। कोई काम है बॉस? माँ की यार मौजूदगी में उसके मुंह से बॉस फिसल जाता था। लॉन में लगा बोगनवेलिया का दरख्त पेंट स्टूडियो की खिड़की तक जाता था। वहां कशमाला खड़ी थी। जामुनी फूलों और सब्ज शाखों के दरमियान वो किसी पेंटिंग का हिस्सा लग रही थी। गुलाबी शलवार कमीज में मलबूस बाल ऊंची पोनी में मकीद किए, दुपट्टा एक कांधे से गुजार के दूसरी तरफ बांधे, वो यकीनन काम के इरादे से स्टूडियो में आई थी। वो जल्द या बदेर तुम्हारी हकीकत जान जाएगी, फिर वो तुमसे नफरत करेगी। वो चंद लम्हे गर्दन उठाए इस पेंटिंग जैसी लड़की को देखे गया। जब उसने ये जॉब शुरू की थी, उसका कशमाला मुबीन से तारुफ हुआ था, तब वो उसके लिए एक तस्वीर थी। वो उसे नहीं जानता था, उसलिए 2 माह के लिए उसका गार्ड बनना मजबूरी के साथ साथ एक एडवेंचर भी लगा था। वो 2 माह बाद यहाँ से चला जाएगा। बाद में वो जान भी जाए तो उसे क्या, कि वो उसका क्या बिगाड़ लेगी। कुछ दिन बाद वो अपनी जिंदगी में मसरूफ हो के उस लड़की को भूल जाएगा। और अब वो सोच एक मजाक लगती थी। वो कैसे उस लड़की को, उसके घर वालों को और उसके पौधों को भूल पाएगा। तुम ऊपर आओ और सलीम को भी बुलाओ, वो ऊपर खड़ी कह रही थी। कैफ चौंका। आज हमने स्टूडियो को साफ करना है। वो पुरजोश नजर आई थी। ये तय था कि उसे माँ के साथ रहना था, मगर उसका ये मतलब नहीं था कि वो घर में बेकार बैठेगी। उसे बेकार बैठने की आदत ना थी, न शौक। उसके जहन में एक नया प्लान पे काम करना शुरू कर दिया था, और वर्क फ्रॉम होम का पहला उसूल ही यही था कि वो घर का एक कोना अपने काम के लिए मुख्तस कर ले। कोई इंसान घर से काम तब तक नहीं कर सकता जब तक उसके पास वर्किंग स्पेस ना हो। उसका सामान इस्लामाबाद से आ गया था। पैकर्स ने सब कुछ पैक करके लाहौर पहुंचा दिया था। अब उसे उस सब को यहाँ सेट करना था। थोड़ी देर बाद सलीम और कैफ उसके साथ स्टूडियो में खड़े काम करवा रहे थे। कैफ किताबें निकाल के रख रहा था और सलीम उनको कार्टन में डाल रहा था ताकि बाहर ले जाके उसे झाड़े। चंद ही मिनट में वो तीनों मिट्टी हो गए। सलीम तो बस ऐसे ही शुरू हो गया था। अलबत्ता कैफ ने दस्तानों और मास्क के साथ काम शुरू किया था, और वो बार बार मिट्टी की वजह से नाक बूम भी चढ़ाता था। नखरे तो देखो। बस एक बात पूछूं? नहीं, काम पे ध्यान दो। बात तो सुने। पहले तुम मेरी बात सुनो। वो दोनों हाथ पहलुओं पे रखे उसकी तरफ घूमी। तुम अपना बिजनेस प्लान बना रहे हो या नहीं? बना लूंगा, 1.5 माह है मेरे पास। मैं जब देखती हूँ तुम स्केच बुक लिए मोटर बाइक्स बना रहे होते हो, मैं स्केचिंग करके फ्रेश हो जाता हूँ। यू नो, स्ट्रेस रिलीफ। वो किताबों की मिट्टी झाड़ते हुए कह रहा था। कशमाला हफ्ती से उसे देख रही थी। तुमने सुना नहीं कि मर्द की सबसे बड़ी बदसूरती उसकी खाली जेब होती है? यार, ये क्या आप लोगों ने स्टैंडर्ड सेट कर लिए हैं कि 30 की उम्र तक पहुंचने से पहले कैरियर सेट होना चाहिए? हर बंदे का नहीं हो सकता। वो झुंझला गया। बात कैरियर सेट करने या ज्यादा कमाने की नहीं है। चाहे कम कमाओ लेकिन अपना कुछ करते रहो। फारिग बैठना हर लिहाज से गलत है। 30 की उम्र आने तक तुम्हारे पास कुछ अपना होना चाहिए। वो किताबें वापस रखते हुए चौंका। मैं आपको कितने साल का लगता हूँ? कैफ ने सवालिया अबरू उठाए तो कशमाला ने रुक अंदाजा लगाना चाहा। शायद 27 या 28। वो महसूस अंदाज में मुस्कुराया। मैं 23 साल का हूँ। नहीं लगता ना? एक्सरसाइज, कम खाना और स्ट्रेस ना लेना, ये चीजें उम्र बढ़ने के प्रोसेस को सुस्त करती हैं। ये साइंसी तौर पे साबित शुदा बात है। ओह, तो तुम कम उम्र दिखने के लिए सारी उम्र बेकार मुश्किलों में जाया कर दोगे, लेकिन कैरियर नहीं बनाओगे। एक मेरा क्लास फेलो भी ऐसा था। हर वक्त अपनी स्किन और फिटनेस की परवाह में लगा रहता था। कभी ढंग से नौकरी नहीं कर सका कि धूप में काम करने से स्किन खराब हो जाएगी। ठीक कहता था, धूप में काम करने से स्किन कैंसर हो सकता है, इसलिए सनस्क्रीन लगानी चाहिए। वो डिटाई से कहते हुए किताबें वापस शेल्फ में जोड़ रहा था। फर्श पे बैठे खाली डब्बे साफ करते सलीम ने नापसंदीदगी से कैफ को देखा। ये मालाबाजी के साथ कुछ ज्यादा ही फ्रैंक होता है। मैं तुम्हें एक नसीहत कर रही हूँ, अपने बिजनेस प्लान पे ध्यान दो।
32 साल की उम्र में भी अगर तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है तो ये अच्छी बात नहीं है। सोचो तुम्हारा मिंटो क्या सोचेगा अगर तुम अपना प्लान दिखाने में नाकाम हो जाते हो। कैफ के चेहरे से साया सा गुजर गया। उसने जवाब नहीं दिया। झुक के एक कैबिनेट खोली और अंदर रखे चंद कैनवास बाहर निकाले, फिर उन्हें खोला तो आंखों में सताइश उभर आई। ये आपने बनाए हैं? जाहिर है मैंने बनाए हैं। अब तुम कहोगे कि ये बहुत अच्छे हैं, तो मुझे पहले से ही मालूम है कि ये बहुत अच्छे हैं, इसलिए काम पे ध्यान दो। कैफ ने मुस्कुरा के कैनवास वापस रखे। वैसे आप क्या काम शुरू करने लगी हैं अब? उसने वो सवाल पूछ लिया जो वो शुरू में पूछने जा रहा था। बताऊंगी, वो बेनियाजी से कह के काम करती रही। कैफ ने चंद लम्हे उसके जवाब का इंतजार किया, फिर उसे एहसास हुआ कि कैफ जमाल एक नाकाम एंटरप्रेन्योर है और कशमाला मुबीन एक कामयाब इंसान। वो एक नाकाम इंसान से कभी राय नहीं लेगी। उसने एक गहरी सांस खारिज की और ऊपरी खानों से चीजें निकालने लगा। वो उन दोनों से लंबा था, इसलिए सबसे ऊपर वाले खानों की सफाई वही कर सकता था। शेल्फ के सबसे ऊपरी खाने से उसने किताबें निकाली तो कुछ फर्श पर गिरा। वो चौंका, किताबें एक तरफ रखी और पंजों के बल नीचे झुका। वो एक तयशुदा कागज था। कैफ ने हल्की सी गर्दन मोड़ के उन दोनों को देखा। उनकी इस तरफ पुश्त थी। किसी ने वो कागज गिरते नहीं देखा था। कैफ ने धड़कते दिल से उसकी तह खोली। अंदर लिखी तहरीर को वो एक ही नजर में पहचान गया था। उसने नामहसूस अंदाज में कागज जेब में रख लिया और वापस काम करने लगा। शाम तक वो तीनों मिलके उस स्टूडियो को चमका चुके थे। मार्बल का फर्श धुल के खुश्क हो चुका था। खिड़कियां अंदर बाहर से साफ हो चुकी थी। एक वर्क टेबल खिड़की के साथ रखी थी जिस पे कशमाला ने अपनी जरूरी चीजें सजाई थी। सेंटेड कैंडल्स भी जला दी थी जिसने सारे को मअतर कर दिया था। कैफ ने तनकीदी नजरों से कमरे का जायजा लिया। यहाँ सिर्फ एक चीज की कमी है, पौधों की। वो मुस्कुरा के बोली, सुबह नए पुराने सारे पौधे सेट कर दूंगी इधर, फिर मेरा होम ऑफिस मुकम्मल हो जाएगा। कैफ ने मुस्कुरा के उसे देखा। उसके बाल और पलकें तक मिट्टी मिट्टी हो चुकी थी, लेकिन वो खुश लग रही थी। पता है कैफ, इंसान को अपनी रूटीन लाइफ बोरिंग लगती है, लेकिन रूटीन असल नेमत है। रूटीन का मतलब है हम सेहत से हैं, आफियत में हैं। बस मुझे अपनी रूटीन में वापस जाना है। इस रेस्टोरेंट का क्या हुआ जिन्होंने आपको जॉब ऑफर की थी? उसे याद आया। वो शेल्फ से टेक लगाए खड़ा था और वो उसके सामने खिड़की के साथ खड़ी थी। वो कशमाला का चेहरा बुझ गया। मैं तवक्का कर रही थी कि वो मुझे कोई मैनेजमेंट पोजीशन ऑफर करेंगे, लेकिन वो अपने रेस्टोरेंट की एक दीवार पे 3D इल्यूजन बनवाना चाहते हैं। आप बना सकती हैं? नहीं, रमजान शुरू होने वाला है, उसके पास ईद तक का वक्त है। वो चाहते हैं कि मैं सारा रमजान उस एक दीवार पे काम करूं, मगर 4 हफ्तों में सिर्फ पेंटिंग बनाई जा सकती है, आर्ट नहीं। क्यों? वो दिलचस्पी से पूछने लगा। आर्ट बनाने के लिए कोई डेडलाइन नहीं रखी जा सकती, क्योंकि आर्ट खुशी से नहीं तख्लीक किया जाता, ना वो पैसे कमाने के लिए होता है। आर्ट दर्द और टूटे दिल से बनता है। इसके लिए कनपट्टी पे उंगली से दस्तक दी। जहन के क्रिएटिव हिस्से का शोर से खाली होना जरूरी है, और मेरे जहन में अभी बहुत शोर है। यानी आपने इनकार कर दिया है? नहीं, सोचने के लिए वक्त मांगा है, हालांकि इनकार कर देना चाहिए था। वो मुतज़ब्ज़ब लग रही थी। आप लोगों को ना नहीं कह दिया करें। ना कहना इतना ही जरूरी है जितना कि सांस लेना। नहीं कहेंगी तो दम घुटने लगेगा। काफी बना दूं? ताबीदारी से पूछा। कशमाला ने इस बात में सर हिला दिया। थैंक यू कैफ, तुम मेरी जिंदगी बहुत आसान कर देते हो। मेरी दुआ है कि तुम्हारा बिजनेस प्लान जल्द बन जाए और वो कामयाब हो। वो खुद से कह रही थी या उससे वो फैसला नहीं कर सका। बस चंद लम्हे उस मेहरबान लड़की को देखता रहा जो उसके कैरियर की इतनी फिक्र कर रही थी। दिल का बोझ बढ़ता गया। कशमाला बीबी, उसने कहना चाहा। ये वो लम्हा था जब वो उसे सब बता सकता था। उसे मालिक की बात नहीं सुननी थी। वो उसे अपनी मजबूरी बताएगा, सारी बात समझाएगा। यही वो लम्हा था। अगर आज नहीं तो फिर शायद कभी नहीं। वो उसे नफरत नहीं करेगी। वो मेहरबान दिल की मालिक थी। वो उसे अपने करीब रहने देगी। वो उसकी हिफाजत करेगा। उसको कोई नुकसान नहीं होने देगा। ओह हाँ, कशमाला ने सुना नहीं। उसे याद आया, मैंने माहिर फ्री को गूगल किया था। आवाज़ आहिस्ता कर ली। सलीम किसी काम से नीचे गया था। उसे उसके आने से पहले बात मुकम्मल करनी थी। कैफ के कदम वहीं जंजीर हो गए। सांस जहाँ थी वहीं रुक गए और दिल जोर से धड़का।
تم نے نوٹس کیا تھا کہ اس کی لائٹر کے اوپر میڈ ان یو کے لکھا تھا؟ کیف نے اسے وہ لائٹر واپس کر دیا تھا اور اس نے کل رات ہی اسے غور سے دیکھا تھا۔ جی، لائٹر تو کہیں بھی بنا ہو سکتا ہے۔ اس نے بات ٹالنی چاہی۔ نہیں، اگر تم غور کرو تو میڈ ان یو کے اور ماہر فرید ان دونوں لفظ کو ایک ہی فونٹ میں انگریو کیا گیا ہے، یعنی وہ لائٹر یو کے کا نہیں بنا ہوا، وہ ایک ہنٹ ہے۔ کیف نے تھوک نگل کے بظاہر ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مطلب یہ کہ اس کی آنکھیں چمکی۔ اس ماہر فرید کا تعلق یو کے سے ہے۔ پہلے میں نے سرچ کیا تو بہت سے ملکوں کے ماہر فرید نظر آئے، لیکن جب میں نے یو کے لکھ کے سرچ کیا تو مجھے ایک پرانی فیس بک پوسٹ ملی۔ وہ اسے بتا رہی تھی جو وہ پہلے سے ہی جانتا تھا، پھر بھی ضبط کیے سنے گا۔ اس کے مطابق ماہر فرید ایک سائیکوپیتھ ہے جس کی ماں باپ نے خود اس کو کسی ذہنی امراض کے اسپتال میں داخل کروایا تھا، لیکن پھر کسی طرح اس نے خود کو وہاں سے نکلوا لیا اور اپنے باپ کا کار کریش میں مر جانے کے بعد وہ اس کے تمام اثاثوں کا مالک بن بیٹھا۔ وہاں کوئی کہہ رہا تھا شاید اس نے اپنے باپ کو قتل کیا ہو۔ اس نے جرجری لی۔ کتنے عجیب لوگ ہوتے ہیں دنیا میں۔ میری ماں کو ذرا سی بیماری ہے اور میرا دل میں آگ لگی ہوئی ہے، اور لوگ پیسے کے لیے اپنے باپ کو بھی مار سکتے ہیں۔ وہ واقعی افسوس سے کہہ رہی تھی۔ کیف کے حلق میں کانٹے اگ گئے۔ سائیکوپیتھ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ پھر اس نے غور سے کشمالہ کو دیکھا۔ کیا واقعی آپ کسی ماہر فرید کو نہیں جانتے؟ نہیں کیف، میں نہیں جانتی، لیکن ایک بات ہے، یہ آدمی جو پتہ نہیں کیوں میرے پیچھے پڑا ہے، یہ اکیلا کام نہیں کر رہا۔ اس نے اپنے ہر کارے چھوڑ رکھے ہیں، جیسے وہ لفٹ والا آدمی۔ یعنی اس سائیکوپیتھ نے پھر سے بہت سا تھوک حلق سے نیچے اتارا۔ کچھ لوگوں کو اپنے پے رول پہ رکھا ہوا ہے، آپ کو تعاقب کرنے کے لیے، ایسا ہی لگتا ہے۔ اور پتہ ہے کیا، یہ لوگ جو اس کے لیے کام کر رہے ہیں یہ اس سائیکوپیتھ سے بدتر ہیں، کیونکہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے، لیکن صرف اس کی دولت کی وجہ سے اس کے ساتھ ہیں۔ وہ جو کچھ رات سے سوچ رہی تھی اس سب کو ایک سانس میں باہر نکال دیا، پھر جرجری لے کر سر جھٹکا۔ سوری، تم کچھ کہہ رہے تھے؟ تب خیال آیا کہ کیف نے کسی بات کا آغاز کیا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں۔ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ میں تھک گیا ہوں، کچھ دیر کے لیے کمرے میں جا رہا ہوں۔ اس سے نگاہ ملائے بغیر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے کیا ہوا؟ یہ تو کافی بنانے جا رہا تھا۔ اس نے تعجب سے کیف کو جاتے دیکھا۔ شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ مزید اس کے بارے میں سوچتی، مگر اس کا فون بجا۔ اس نے موبائل اٹھا کے دیکھا، زیاد سلطان کا ایک میسج ریسیو ہوا تھا۔ اس نے پچھلے میسج ابھی کھولا نہیں تھا، نوٹیفیکیشن سے پڑھا تھا، کیونکہ وہ تب تک یہ فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ کیا وہ زید سے گفتگو کرنا چاہتی ہے، لیکن اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ شور، اب مجھے رات 8 بجے سے پہلے تک کسی بھی وقت کال کر سکتے ہیں۔ اس نے مسکرا کے میسج ٹائپ کیا۔ سیڑھیاں اترتے کیف کے قدم من بلکہ ہو رہے تھے، رنگت سفید پڑ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ نیچے کمرے میں آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ فرش پہ ایک سادہ میٹرس رکھا تھا، ایک طرف الماری تھی اور دوسری جانب کولر لگا تھا۔ کیف میٹرس پہ بیٹھا اور کتنی ہی دیر سامنے والی دیوار کو دیکھے گیا۔ پھر اس نے موبائل نکالا اور وائٹ ہیئرز کو کال ملائی۔ میں یہ چاپ کرتا رہوں گا، میں اسے سچ نہیں بتاؤں گا، بے فکر رہو۔ ارے واہ، ایک دم اتنی تبدیلی کیسے؟ تم نے ٹھیک کہا تھا، میں اسے پہلے ہی دھوکہ دے چکا ہوں اور وہ جلد ابدے مجھ سے نفرت ہی کرے گی، اس لیے مجھے جلد از جلد اپنا کام مکمل کر کے یہاں سے نکلنا ہے۔ وہ تلخی سے دبی آواز میں کہہ رہا تھا۔ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اچھا، مجھے ایک کاغذ ملا ہے کشمالہ کے گھر سے، اس کی تصویر بھیج رہا ہوں۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ وہ مکینکی انداز میں بتا رہا تھا، کسی رپورٹ کی طرح، کسی کا رپورٹ جاسوس کی طرح۔ تم نے کشمالہ کو بتایا اس کاغذ کے بارے میں؟ نہیں، میں کشمالہ مبین کے لیے کام نہیں کرتا، میں ایک خود غرض انسان ہوں اور میں صرف ایک آدمی کے لیے کام کرتا ہوں، اور وہ ہے ماہر فرید۔ اس کے انداز میں خود اپنے لیے ناپسندیدگی تھی۔ وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی، اور ایک وقت آئے گا جب وہ اس سے نفرت کرے گی۔ اسے ابھی سے خود کو اس وقت کے لیے تیار کرنا تھا۔